السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ اے خالق دو جہاں، ہم پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، آمین۔ سرائے عالمگیر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ شہری گھر کا کھانا کھانے کو ترس گئے، جبکہ LPG اور لکڑی کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ سردی آئے نہ آئے گیس نہیں آئے گی۔ سرائے عالمگیر میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں۔ کئی علاقوں میں گیس کا پریشر کم تو کہیں گیس مکمل غائب۔ عوام مہنگے داموں LPG اور لکڑیاں خرید کر گزارا کرنے پر مجبور ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ گیس آتی نہیں مگر بل ہر ماہ باقاعدہ آ جاتے ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ گیس کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے۔ سکھر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ عوام کے لیے درد سر بن گئی۔ گھریلو صارفین کی گھنٹوں کے لیے گیس بند کی جا رہی ہے۔ حاجی ریاض کی رپورٹ۔ ملک میں ہر چیز نمائشی بنا دی گئی ہے۔ ادارے اور ان کے اقدامات بھی نمائشی بن چکے ہیں۔ عوام کے لیے ریلیف کہیں بھی نہیں ہے۔ گیس کی بندش کے ساتھ ساتھ اضافی بلوں نے صارفین کے بجٹ بری طرح متاثر کر دیے ہیں۔ سارا سال عموماً اور سردی کے آغاز کے ساتھ ہی گیس کی بندش کے باعث عوام بنا ناشتے کے دفاتر اور کاروبار پر جانے پر مجبور ہیں۔ گھریلو خواتین دن اور رات کا کھانا بھی وقت پر بنانے سے قاصر ہیں۔ عوام قسم پرسی کے حال میں ہوٹل سے کھانا کھائیں یا بھوک مریں۔ عمران خان صاحب کی حکومت نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو دوائی کی طرح جیسے دوائی دی جاتی ہے 3 وقت صبح اور دوپہر اور شام دوائی پی جاتی ہے نا، تو اس طرح جو ہے وہ گیس آپ کو ملے گی۔ پہ کھانا بناتی ہیں جو لکڑیوں پہ نہیں بنا سکتی، ان کا یہ حال ہے کہ کھانا جب گیس آتا ہے پکا کے رکھ لو اگر فریج میں خراب ہونے کے اندیشے میں، جب گرم کرو تو وہ کھانا ٹھنڈا ہی رہتا ہے، ہمیں ٹھنڈا کھانا پڑتا ہے، گیس ہوتا ہی نہیں ہے۔ سلنڈر بھرواؤں یا بچوں کے کھانے منگواؤں، کیا کروں؟ مطالبہ ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کے خاتمے کے لیے فوری ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ کیمرہ مین اشفاق کھوسو کے ساتھ حاجی ریاض کھوکھر، سچ نیوز، سکھر۔ شب قدر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ نہ پانی نہ بجلی، غریب عوام جائے تو جائے کہاں۔ تحصیل شب قدر میں بجلی کی آنکھ مچولی نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث گھریلو صارفین کو سخت مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے نوٹس کا مطالبہ کر دیا۔ کوٹدو میں سوئی گیس نایاب ہو گئی۔ سوئی گیس کی آنکھ مچولی کا سلسلہ نہ تھم سکا، جس کے باعث گھریلو صارفین کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اسحاق کاظمی کی رپورٹ۔ کوٹدو سردیوں کے آتے ہی سوئی گیس نایاب ہو گئی۔ سوئی گیس کی بندش پر خواتین کو شدید مشکلات۔ سوئی گیس بند ہونے سے ناشتہ اور کھانا بنانے میں خواتین کو دشواری کا سامنا ہے۔ کچن میں مہنگے داموں LPG کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سوئی گیس بند ہونے سے ناشتہ وقت پر نہیں بنتا۔ سلنڈر بھی کچھ روز میں ختم ہو جاتا ہے۔ کالج اور آفس میں بغیر ناشتہ کیے جانا پڑتا ہے۔ سوئی گیس نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں اور ہمارا جو کام ہے گھر کا کچن کا وہ بالکل رک جاتا ہے۔ بہت ہی ہم تنگ ہیں اس وجہ سے۔ سلنڈر یوز کر رہے ہیں تو سلنڈر بھی کب تک بیچارہ ساتھ دے۔ صبح گیس نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں جی، ہم نے کچن میں ناشتہ کرنا ہوتا ہے، چائے بنانی ہوتی ہے تو سب بھی چائے پیتے ہیں، ہمیں آفس جانا ہوتا ہے، بچوں کو اسکولز کالجز جانا ہوتا ہے، سب لوگ اس وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں۔ اس کے لیے کچھ کیا جائے۔ سردیاں سٹارٹ ہوتے ہی یہی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ خواتین نے حکومت سے سوئی گیس کے ریٹ کم کرنے اور سوئی گیس کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین کاشف علی کے ساتھ اسحاق کاظمی، سچ نیوز، کوٹدو۔ محکمہ انہار کی مبینہ غفلت و لاپرواہی خیرپور کی بڑی نہر میں شگاف پڑ گیا، جس سے فصلوں سمیت رہائشی علاقے زیر آب آ گئے۔ خیرپور کی بڑی نہر میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے گنے، کپاس سمیت کھجوروں کے باغات میں پانی بھر گیا۔ نہری پانی نے علاقے میں تباہی مچا دی۔ فصلوں اور رابطہ سڑکوں سمیت نہری پانی کچے گھروں میں داخل ہو گیا۔ اہل علاقہ نے الزام عائد کیا کہ محکمہ انہار کا عملہ نہ تو بھل صفائی کرواتا ہے اور نہ ہی نہر کے کناروں پر تعینات عملہ اپنے فرائض انجام دیتا ہے۔ دوسری جانب محکمہ آبپاشی کا کہنا ہے کہ نہروں میں پانی کی فراہمی روک دی گئی ہے اور شگاف بند کرنے کا عملہ بھی بھیج دیا گیا ہے۔ ضلع کرم کی تحصیل اور کرم کی 5 یونین کونسل پر مشتمل علاقہ نادرہ تعلیم اور صحت سمیت بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ انتظامی اور سیاسی حلقہ بندیوں کے بعد بھی ترقیاتی کاموں اور سہولیات تک رسائی ممکن نہیں۔ جاوید بنگش کی رپورٹ۔
لوئر کرم کے علاقہ سمیر میں منعقدہ بلچ خیل سنگینہ بساتو ٹوپکی سمیر عمل کوٹ کساڑ یکوبی مورا ابرمزائی اور دیگر علاقوں کے عمائدین پر مشتمل جرگے سے خطاب کرتے ہوئے ملک وقار بنگش، ایران علی، ملک بلال بساتو، حسن علی، امجد علی اور دیگر عمائدین نے کہا کہ 35 دیہات اور 5 یونین کونسلوں پر مشتمل علاقہ نادرا صحت اور تعلیم سمیت زندگی کی تمام تر بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ مین شاہراہ پر واقع ہونے کے باوجود یہ علاقے ہمیشہ سے نظر انداز ہو رہے ہیں اور ستم بلائے ستم کے مختلف ادوار میں پارلیمنٹرینز کا تعلق بھی انہی علاقے جات سے رہے ہیں، مگر یہ علاقے ہمیشہ سے نظر انداز ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹو لیول پر عمل کوٹ تک لوور کرم کے ساتھ ہے اور میں نے ایم پی لیول پہ اگر حلقہ بندی کی دیکھی جائے تو وہ ہم اپر کرم کے ساتھ ہے، اس وجہ سے ہمیں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تحصیل صدہ میں ان کو مسئلہ کی بنیادوں پر نظر انداز کیا جاتا ہے، جبکہ اپر کرم پارا چنار میں انہی لوئر کرم والے کہہ کر تحصیل صدہ بھیج دیا جاتا ہے۔ تعلیم، صحت، شناختی کارڈ، پاسپورٹ، عدالتی کاروائیوں سمیت مختلف بنیادی ضروریات کے حصول کے لیے وہ ان دو تحصیلوں کے بیچ وار ہو رہے ہیں۔ اقدامات اٹھائے جائے بصورت دیگر وہ احتجاج تحریک شروع کریں گے۔ جاوید بنگش، سچ نیوز، پارا چنار، ضلع کرم۔ لوئر دیر کے نادرا دفاتر میں سٹاف اور کاؤنٹرز کی کمی کی وجہ سے شہریوں کا شناختی کارڈ اور بے فارم بنانا مشکل ہو گیا۔ رحمت اللہ سباتی کی رپورٹ۔ لور کے نادرا دفاتر میں سٹاف اور کاؤنٹر کی کمی کی وجہ سے شہروں کو قومی شناختی کارڈ اور فارم بی بنانا ایک خواب بن گئے ہیں۔ لور کے 16 لاکھ آبادی کے لیے حکومت نے 7 نادرا دفاتر قائم کیے ہیں۔ ان 7 دفاتروں میں ٹوٹل 24 ٹیکنیکل عملہ کام کر رہے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے کورونا ویکسین، احساس پروگرام، ڈومیسائل اور اسکول کے داخلوں کے لیے فارم بی لازمی قرار دینے کے بعد نادرا دفاتر پر شہروں کا رش لگا ہوا ہے۔ اتنا لوگ بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی امید نہیں ہے کہ 2 دن میں اگر میں ادھر ویٹ کرے گا تو 2 دن میں کام ممکن ہی نہیں ہے کہ ہو جائے گا۔ 3 دن سے آ رہے ہیں، ان کا کام نہیں ہو رہے، یہاں پہ سٹاف کا کمی ہے۔ شناختی کارڈ اور فارم بی بنانے کے لیے شہری نادرا دفاتر کے سامنے رات گزارنا پڑتی ہے۔ نادرا کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد ارشد کا کہنا ہے کہ نادرا دفاتر روزانہ کی بنیاد پر 1500 ٹوکن جاری کرتے ہیں اور روزانہ 5000 مرد، خواتین اور بچوں کو شناختی کارڈ اور فارم بی بنانے کے لیے آتے ہیں، جس کی وجہ سے نادرا دفاتر پر شہروں کا رش بڑھ گئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگرہ، لوور دیر۔ رحمیار خان کا سیوریج سسٹم خستہ حالی کا شکار ہو گیا۔ سرکاری سکول کے باہر پانی جمع رہنے سے سیوریج کا پانی جمع رہنے سے طلباء و طالبات کو پریشانی کا سامنا ہے۔ رحمیار خان کی سڑکوں پر کھڑا سیوریج کا پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ تعفن پھیلنے سے شہری بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ بچے گندے پانی سے گزر کر سکول جانے پر مجبور ہو گئے۔ سکول کے اساتذہ اور طلباء نے انتظامیہ سے سیوریج کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ خیرپور کا تاریخی ممتاز گراؤنڈ خستہ حالی کا شکار ہو گیا۔ صفائی کے ناقص انتظامات کے باعث کھلاڑیوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ علی گوہر کی رپورٹ۔ خیرپور انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے خیرپور میں موجود تاریخی ممتاز گراؤنڈ تباہی کے کنارے پر پہنچی ہے۔ گراؤنڈ کے اندر پودے، گھاس بوس پیدا ہو گئے، جس کے باعث نشیوں نے گراؤنڈ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ گراؤنڈ کے خستہ حالی اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان کھلاڑیوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ سہولت بالکل نہیں ہے، نہ یہاں بیٹھنے کی سہولت ہے۔ ہمارے یہاں پلیئرس جو ہے، ہمارے جو بھائی ہیں، جو بھی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں فٹ بال یا کرکٹ وغیرہ، ان کو کوئی سہولیت یہاں نہیں مل سک رہی ہے۔ نوجوان کھلاڑیوں نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے مطالبہ کیا ہے کہ خیرپور کے تاریخی ممتاز گراؤنڈ خستہ حالی کا نوٹس لے کر فوراً گراؤنڈ کی بحالی کا کام کروا کے خیرپور کے نوجوان کھلاڑیوں کی بے چینی ختم کی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی گور گوپانگ، سچ نیوز، خیرپور۔ چترال میں تمام خستہ پل اور سڑکیں تعمیر کی جائیں۔ ضلع اپر اور لوئر چترال کی تمام وادیوں اور تنظیموں کے نمائندوں نے اہم اجلاس بلا لیا۔ گل حماد فاروقی کی رپورٹ۔ چترال میں ایک غیر سیاسی فلاحی تنظیم چترال ڈیولپمنٹ موومنٹ یعنی CDM کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ ضلع اپر اور لوور چترال کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا اجلاس تھا جس میں ارندو سے لے کر وادی بروغل تک مختلف وادیوں اور تنظیمات کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں اس بات پر نہایت تشویش کا اظہار کیا گیا کہ چترال کی دونوں اضلاع میں سڑکوں کی حالت انتہائی خراب ہے، جو آئے روز حادثات کا باعث بنتا ہے۔ ان حادثات میں کئی قیمتی جانیں بھی ضائع ہوتی ہے۔ اجلاس میں متفقہ طور پر ایک قرارداد بھی منظور ہوا۔ قرارداد کے ذریعے صوبائی اور وفاقی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا گیا کہ چترال بھر میں تمام پل اور سڑکیں فوری طور پر تعمیر کیا جائے۔ قرارداد کے ذریعے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ مقررہ نرخ سے کم قیمت یعنی بلو ریٹ پر کوئی بھی ٹیکہ نہ دیا جائے، کیونکہ اس میں کام کا معیار نہایت ناقص ہوتا ہے۔ کسی بھی سیاستدان کو اس وقت تک افتتاح یا بورڈ نہیں لگانا چاہیے جب تک اس منصوبے پر عملی کام شروع نہ ہو۔ مقامی صحافیوں سے اس اجلاس کے اراکین نے اظہار خیال بھی کیا۔ محترم، ہم نے اپنے روڈوں کے حوالے سے جو مشکلات
मुश्किलात में हमारे अवाम और हम मुब्तला है। इसके लिए हमने एक करारदाद हमने पास की और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द हमारे करारदाद पर अमल दरामद किया जाए। इस नहायत अहम इजलास में अरंदू, दुरोश, गरम चश्मा, तुर्को, मुल्को, तिरीच, वादी अरकरी और वादी करीमाबाद वगैरह के नुमाइंदगान ने शिरकत की, जो बाद में दुआया कलमात के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। गुलाम फारूकी, सच न्यूज़, चतराल। लिया के मुख्तलिफ इलाकों में धुआं छोड़ते भट्टे स्मोक में इजाफे समेत शहरियों के लिए मसाइल का बायस बनने लगे हैं। सहूर दुरानी की रिपोर्ट। स्मोग ने लाहौर और कराची के साथ पंजाब के बेहतर शहरों को अपनी लिपेट में लेना शुरू कर दिया। बढ़ती स्मोग की सबसे बड़ी वजह धुआं छोड़ने वाले ईंटों के भट्टे और कोयलों की भट्टियां हैं। 12 हुकूमती दामों ऐलानात के बावजूद अभी तक लिया में जिला इंतजामिया और महकमा माहौलियात न ही कोयले की भट्टियों को बंद कराने में कामयाब हो सका, न ही ईंटों के भट्टों को टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कराने में कामयाब हुआ। इदारों की जानिब से फर्जी कार्रवाइयों और फैलों के पेट भरने अफसरान को मामूम बनाने का अमल बातदरीज जारी है, जबकि हुकूमत की जानिब से जिगजैग टेक्नोलॉजी न अपनाने वाले ईंटों के भट्टों और कोयले की भट्टियों को बंद कराने के वादे अहकामात के बावजूद जिले इंतजामिया और महकमा माहौलियात हुकूमती रीट कायम कराने में नाकाम हो चुका। धुआं उगलते ईंटों के भट्टे और कोयले बनाने वाली भट्टियां माहौलियाती आलूदगी और स्मोक का सबब बनने के साथ फेफड़ों, सांस की बीमारियों, दिल की अमराज और आंखों की बीमारियों का बायस बने हुए हैं। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। स्मोक का खतरा बनने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। चुनिया, कोट राधाकृष्ण और शकरगढ़ में स्मोक का बायस बनने वाले अनासर पर जुर्माने आयद कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर कोट राधाकृष्ण ने स्मोक के तदारुक के हवाले से फैक्ट्री एरिया का दौरा किया। स्मोक का बायस बनने वाली फैक्ट्रीज पर लाखों रुपए के जुर्माने आयद किए। उनका कहना था कि आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रीज के मालिकान के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रहेगी। शकरगढ़ तहसील इंतजामिया माहौलियाती आलूदगी को काबू करने के लिए मुतहर्रिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ ने टीम के हमरा छापे मारकर 15 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पर जहरीली स्मोक की चादर बदस्तूर बरकरार है। दुनिया के बड़े शहरों में फजाई आलूदगी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर आज दूसरे नंबर पर है। शहरी आंखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में फजाई आलूदगी 298 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई। कोट लखपत में सबसे ज्यादा 463 AQI रिकॉर्ड किया गया। गुलबर्ग में 419, मॉडल टाउन में 380, DHA फेज 2 में 345, FC में 316 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। इलामा इकबाल टाउन में 320, पंजाब यूनिवर्सिटी में 320, इडन कॉटेजेस में 395 और अनारकली बाजार में AQI 317 तक पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आलूदा फजा रायवंड की है, जहां पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 403 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद 397 दूसरे और साहिवाल 379 पार्टिकुलेट मीटर्स के हमरा तीसरे नंबर पर है। दूसरी जानिब बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका 317 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ फहरिस्त में पहले नंबर पर, भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली 218 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ तीसरे, कराची 187 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ चौथे और भारतीय शहर कोलकाता 185 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ 5वें नंबर पर है। चौक सरवर शहीद में खाद की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। चौधरी साजिद अली की रिपोर्ट। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत कोटद्दू शबीर अहमद गशकोरी की चौक सरवर शहीद में महंगे दामों खाद फरोख्त करने वाले खाद डीलरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत शबीर अहमद ने फील्ड असिस्टेंट मिस्री खान के हमरा चौक सरवर शहीद और रियाजाबाद में महंगे दामों खाद फरोख्त करने वाले 5 खाद डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 5,000 तक 15,000 रुपए तक जुर्माने किए। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत शबीर अहमद गशकोरी का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था, किसी भी खाद डीलर को महंगे दामों खाद फरोख्त करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। खाद की ओवर प्राइसिंग पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तमाम खादें इंशाल्लाह कंट्रोल रेट पे हम बिचवाएंगे इनसे, और इनकी तमाम फर्टिलाइज़र की रेट लिस्ट उसके पैनाफ्लेक्स दुकानों पे लगवा रहे हैं। किसी भी काश्तकार को ये अगर ओवर चार्जिंग करेंगे, ज़्यादा कीमत वसूल करेंगे, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। महंगे दामों खाद खरीदने वाले काश्तकारों को मौके पे ही ज़ायद रकम वापस दिलवाई गई। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। बिहाड़ी और गिरदोनवा में खादें न मिलने की वजह से किसान परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नदीम। व्याड़ी शहर में खादें नायाब हो गईं। किसान ब्लैक में इजाफी रेट पर खादें लेने पर मजबूर हैं। जिला इंतजामिया ने खाद माफिया के सामने घुटने टेक दिए हैं। किसान एहतजाज करने पर मजबूर हैं। किसान इत्तेहाद के मरकजी जनरल सेक्रेटरी चौधरी इफ्तिखार ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजाई सर पर है और किसानों को खाद नहीं मिल रही। हमारे किसान महंगी खादें खरीदने पर मजबूर हैं। जिला बिहाड़ी में इस वक्त इंतजामिया की बेहिसी की वजह से DAP नायाब है और इस वक्त 8,000 वाली DAP इस वक्त 10,000 में मिल रही है। दूसरी जानब SC बिहाड़ी वसीम ने
विहाड़ी शहर में एक गोदाम पर स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर रेड किया, लेकिन 30,000 स्टॉक होने के बावजूद कार्रवाई न की। किसानों ने कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया कि हमें खाद हुकूमती रेट पर दस्तयाब न हुई तो हम जल्द इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करेंगे। कैमरामैन राशिद अली के साथ मोहम्मद नदीम लक, सच न्यूज बिहाड़ी। टुडियाल में लगे लंडा बाजार वीरानी का मंजर पेश करने लगे। आसिफ अली की रिपोर्ट। मुल्क भर में महंगाई ने जहां गरीब आदमी को परेशान कर रखा है, वहीं पर डोडियाल में लगे लंडा बाजार भी वीरान पड़े हैं। सर्दियां शुरू होते ही लंडा बाजार में सर्दियों के सस्ते कपड़े, जूते और बाकी इस्तेमाल की अशिया के लिए रश लग जाता था, मगर इस दफा वो भी गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। जो महंगाई की वजह से गाहक नहीं है और बिल्कुल काम नहीं है, काम की वजह से थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन माल अच्छा माल है लेकिन गाहक नहीं है। सारा दिन दुकानदार भी गाहकों के इंतजार में बैठे रहते हैं और परेशान दिखाई देते हैं। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से अब्बासपुर में फ्री वेटरनरी मेडिकल कैंप लगाया गया। रिपोर्ट करेंगे मुबशिर नकवी। पर पाकिस्तान आर्मी की जानिब से फ्री चेकअप किया गया। जानवरों के फ्री चेकअप के साथ साथ फ्री अद्वियात और इंजेक्शन भी लगाए गए। पाकिस्तान आर्मी के मेजर फखर और कैप्टन अजीम ने सच न्यूज को बताया कि पाकिस्तान आर्मी की बलोच रेजिमेंट की ये कोशिश होगी कि अब्बासपुर में इस तरह की ये पहली कार्रवाई है, जिसके बाद अब्बासपुर के मुतअद्दिद दही इलाका जात में भी जानवरों का फ्री चेकअप किया जाए। अवाम इलाका ने पाकिस्तान फौज के इस इक़दाम की तारीफ की है और मुतालबा किया है कि पाकिस्तान आर्मी ये कैंप अब्बासपुर के देहातों में भी लगाए, क्योंकि जानवरों की सेहत के लिए अब्बासपुर में इस तरह की ये पहली एक्टिविटी है जो काबिल तहसीन है और इसकी अशद ज़रूरत भी है। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाने पर अहलियान अब्बासपुर ने पाक फौज का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरा टीम के साथ मुबशिर नकवी, सच न्यूज़, अब्बासपुर, आज़ाद कश्मीर। चिन्योट के नवाई इलाके में सुपर प्रीमियर लीग फाइनल मैच का इनेकाद किया गया। अब्दुर्रहमान कलियार की रिपोर्ट। चिन्योट की तहसील बुआना का इलाका दरबार डोंडेशाह में सिपरा प्रीमियर लीग का इनकाद किया गया, जिसमें 44 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में पहले खेलते हुए महमूद 11 ने मुकर्ररा 12 ओवर्स में 174 का टारगेट दिया, जिसमें आबद अली ने 99 रन की शानदार इनिंग खेली। 174 रन के तवक्कुफ में सिपरा 11 की बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। कोई भी खिलाड़ी विकेट पर जमकर न खेल सका और पूरी टीम 80 रन पर आउट हो गई। इसी तरह महमूद 11 चैंपियन बन गई। मेहमान खसूसी मार अली हमायूं सिपरा ने जीतने वाली टीम में मोटरसाइकिल, बड़ी ट्रॉफी और नकदी तकसीम की। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मुबशर चद्दड़ को मार इजाज हुसैन ने दिया, जबकि रनर अप आने वाली टीम सिपरा 11 में दीगर मेहमान खसूसी की जानिब से ट्रॉफियां और नकदी भी तकसीम की गई। कामयाब लीग करवाने पर मोहम्मद असनैन और उनके साथियों को मुबारकबाद दी गई। कैमरामैन अली के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चिन्योट। बलवाल के सरकारी स्कूल में 3 रोज़ा टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। सरकारी स्कूलों के तलबा ने मुख्तलिफ मुकाबला जात में हिस्सा लिया। भलवाल में जिले स्पोर्ट्स टूर्नामेंट सेकेंडरी विंग के ज़रिए तमाम 3 रोज़ा टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस मौका पर शहर भर के तमाम सरकारी स्कूल्स के तलबा ने क्रिकेट, रस्साकशी, हॉकी और दीगर मुकाबला जात में हिस्सा लिया। चिन्योट में पुलिस का जराम पेश अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। चिन्योट में पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में नाजायज़ असला और मनशियात बरामद होने पर 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। खसरा और रुबेला और पोलियो की जड़ से उखाड़ फेंकने का वाहिद तरीका हिफाजती टीके और वैक्सीनेशन है। राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट। इंसदाद खसरा और रुबेला की कौमी मुहिम के तहत जिला में बच्चों की वैक्सीनेशन मॉनिटरिंग के लिए प्रोवेंशनल कोऑर्डिनेटर यूनिसेफ डॉक्टर यासीन और आलमी इदारा सेहत के कंसल्टेंट डॉक्टर नासिर ने MSDHQ चकवाल डॉक्टर मुख्तार सरवर खान न्याजी और DHO डॉक्टर अंजुम कदीर के हमरा जिला चकवाल का दौरा किया। उन्होंने DHQ हॉस्पिटल और मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल का दौरा किया और वैक्सीनेशन पर मामूर टीमों की कारकर्दगी को चेक किया। मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 3 फिक्स साइट हैं और तीनों बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये बच्चियाँ जो स्किल्ड पर्सन और असिस्टेंट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एहसन तरीके से इंजेक्शंस लगा रहे हैं और बड़ी अच्छी कवरेज है चकवाल की। और मैं ये समझता हूँ कि चकवाल अगर ये बाकी दिन भी इसी तरह की कवरेज करेगा तो इंशाल्लाह हम अपना टारगेट 100% अचीव कर लेंगे। अवाम खसरा, रुबेला और पोलियो से बचाव के लिए अपने 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को हिफाजती वैक्सीनेशन कल नहीं आज के तरजीह असूल पर कराएं और बच्चों का महफूज मुस्तकबिल यकीनी बनाएं। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। मुल्क भर की तरह आने में भी खसरा और रुबेला जैसी मर्ज से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की जा रही है। नजीर अहमद खरल की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह आरिफ वाला में भी बच्चों को खसरा और रुबेला बीमारियों से बचाने के लिए आरिफ वाला में मुख्तलिफ जगहों पर सेंटर्स कैंप कर दिए गए हैं, जहाँ पर 9 साल से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला वैक्सीन सेंटर की खुद निगरानी कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वट्टू का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना है, तहसील आरिफ वाला में भी मुल्क भर की तरह रुबीला और खसरा की वैक्सीनेशन के सिलसिले में मुहिम जारी है, जिसमें हमने 227 टीमें तश्कील दी हैं
जो मुख्तलिफ जगह पे काम कर रही हैं। मजीद इनका कहना है कि वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को इन बीमारियों से बचाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की हदायत पर अमल करते हुए 9 माह से 15 साल के बच्चों को फौरी तौर पर वैक्सीनेशन करवाएं और अपनी नस्ल को इन बीमारियों से महफूज रखें। कैमरामैन फैज फरीद किच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। गवर्नमेंट पंजाब की हिदायत पर वापडा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मुल्तान की जानिब से वापडा टाउन में डेंगू आगाही मुहिम का एहतमाम किया गया। अहमद खान की रिपोर्ट। वापडा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रिहायशियों ने वापडा टाउन में डेंगू से बचाव के लिए आगाही वाक की, जिसकी क़यादत एडमन सोसाइटी नई मरशद और मलिक सुधीर अवान ने की। इस मौके पर एडमन सोसाइटी का कहना था कि डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर बारे आगाही मुहिम तेजी से जारी है। डेंगू मच्छरों से बचाव के लिए स्प्रे और डेंगू से महफूज रहने के लिए दीगर तदबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इस वाक का मकसद तो यही है कि जैसे अभी सुधीर भाई ने बताया कि डेंगू के खात्मे के लिए है, उसके लिए ये है कि क्यारों में पानी ना खड़ा होने दें। दूसरी हिफाजती तदबीर जो भी हैं हुकूमत गाय बगाए आगाह करती रहती है, जिसकी वजह से उन पे हमें अमल करना चाहिए और डेंगू से बचाना चाहिए। वाक में वापडा हाउसिंग सोसाइटी के मेंबरान उमैर सईद, हबीबुर रहमान, मियां साजिद समेत दीगर शरीक थे। डेंगू से बचाव के लिए आगाही भी दी गई। सफाई व सुथराई के कल्चर को आम करके मच्छरों की अफजाइश के माहौल को ख़त्म किया जा सकता है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब अब्दुल शकूर साहब की हिदायत पे अपने वापडा टाउन हाउसिंग सोसाइटी में लोगों को आगाही के लिए ये वॉक की है, ताकि लोगों को बताया जा सके कि डेंगू के मच्छरों की अफजाइश को किस तरह रोकना है। डेंगू मच्छरों से बचाव के लिए घरों, गली मोहल्लों समेत दीगर किसी भी जगह पर पानी जमा ना होने दें। अपने बच्चों को रात के औकात घरों में रखें। कैमरामैन मोहम्मद रमजान के साथ अहमद खान, सच न्यूज़, मुल्तान। कातिल डेंगू पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 5 जाने ले गया। मरने वालों में से 4 का ताल्लुक लाहौर और 1 का नौशहरा से था। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान डेंगू से 96 अफराद मुतासर हुए। सूबे में डेंगू फाल केसेस की तादाद 214 जबकि डेंगू केसेस की तादाद 10,117 हो गई। पंजाब भर से रिपोर्ट डेंगू के 139 मरीजों में से 106 लाहौर से, रावलपिंडी से 12, फैसलाबाद 5, सरगोदा 4, सियालकोट और गुजरांवाला से 2-2, चिन्योट, हाफिजाबाद, कसूर, खुशाब, मुल्तान और पाकपतन से 1-1 मरीज रिपोर्ट हुआ। रवां साल पंजाब भर से अब तक डेंगू के केसेस की कुल तादाद 23,866 हो चुकी है। रवां सीजन में सूबे में डेंगू बुखार के बायस 126 अफराद जान की बाजी भी हार चुके हैं। सर्दी में शिद्दत के बाद इस्लामाबाद में केसेस में कमी आने लगी। 24 घंटे के दौरान 12 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। रूरल एरिया 9 और अर्बन से 3 डेंगू केसेस सामने आए। रवां सीजन में 4,554 डेंगू केसेस और 19 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। आलमी वायरस कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। मुल्क भर में मजीद 5 मरीज चल बसे। 24 घंटों में कोरोना के 315 नए केसेस सामने आ गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदादो शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 28,668 जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 12,82,510 हो गई। मुल्क में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 14,862 है, जिनमें से 1,026 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटों में कोरोना के 8,010 मरीज सेहतयाब जबकि कोरोना से सेहतयाब अफराद की मजमूई तादाद 12,38,980 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 35,332 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 2,17,17,633 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता रोज 4,56,029 अफराद की वैक्सीन लगाई गई। मुल्क भर में 12,11,58,338 कोरोना वैक्सीन डोजेज लगाई गई हैं। जाड़े के मौसम ने अंगड़ाई ली और सरसों के खेत लहलहा उठे। इस हवाले से देखिए जफर इकबाल की रिपोर्ट। पंजाब के हर देहात की तरह हाफिजाबाद में भी सब्ज अलबास ओढ़े ये सब्जी हर घर से खाने को मिलेगी। साग को पंजाब की एक खास सौगात भी कहा जाता है। सरसों के खेतों से कुछ खास किस्म के सरसों के तने तोड़े जाते हैं। इन तनों को काटकर बारीक किया जाता है। साग की लज्जत लेनी हो तो इसकी पकाई मट्टी के बर्तन में की जाती है। रात भर साग को आग के हवाले कर दें, सुबह धनक उठते ही बाप साग की तैयारी की खबर देगी। इसी घी में तड़का लगा और साग, पराठा और मक्की की रोटी, मक्खन और लस्सी दस्तरखान पर हो तो पार्टी का मजा दुबाला हो जाता है। साइंसी एतबार से देखा जाए तो साग में कैल्शियम, पोटेशियम, फौलाद, फास्फोरस का काफी मकदार में मौजूद होता है, जो इसी मुतवाज़न ग़िज़ा बनाता है। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जफर इकबाल, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। जाड़े का संदेशा आया, डहरकी में रजाइयों की मांग में इजाफा हो गया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफूर।
सर्दी में इजाफे से रजाइयों की मांग में इजाफा हो गया। बढ़ती हुई महंगाई ने इसे भी न छोड़ा। कपड़े और रुई की कीमतों में इजाफे से रजाई बनाने वाले दुकानदारों ने रजाइयों की रेट दुगने कर दिए हैं, जिससे रजाई लेने वाली गरीब आवाम की मुश्किलात बढ़ने लगी। रजाई लेने वाले गरीब आदमी खाली हाथ लौटने पर मजबूर है और खरीदारों का कहना है, पर रजाई लेने आए तो 1500 की थी, अब ये लेने आए तो 2500 3000 की है। दिनों दिन महंगाई हो जाए, गरीब आदमी किधर जाए। हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए कि इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करे ताकि गरीब आवाम सुकून की जिंदगी बसर कर सके। कैमरामैन नौशाब के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज, देहर की। मौसम ने ली अंगड़ाई, अख्तराबाद में गुड़ की मांग में होने लगा इजाफा। रिपोर्ट कर रहे हैं राना नवाज। दो नवाह में कमाद की फसल बड़े पैमाने पर काश्त की जाती है। शुगर मिल्स मालकान की जानिब से अदायगी में रुकावटें आने के बाद किसानों ने शक्कर गुड़ मंडियों का रुख कर लिया। इलाके का एक जिमीदार हाँ, मैं ज़्यादातर गन्ने की काश्त असी करी दी। उस गन्ने नूं बाद विच शक्कर और गुड़ बना के असी इस अख्तराबाद मंडी ते लैके आने आ। ये चूँकि पाकिस्तान की सब तो वड्डी मंडी है, पूरे पाकिस्तान तो इलावा भी दूसरे मुल्कों के विच इत्थों गुड़ और शक्कर जिहड़ा ना वो सप्लाई किया जाता है। सर्दी का मौसम शुरू होते ही शहरियों ने शक्कर गुड़ मंडी का रुख कर लिया। शहरी बड़े शौक से सर्दियों की बेहतरीन सौगात शक्कर गुड़ खाते हैं। शहरी अपने अजीजो वकारिब को शक्कर गुड़ तोहफे के तौर पर देते हैं। अख्तराबाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार होती है, जहाँ से शक्कर गुड़ मुल्क भर में फरोख्त की जाती है। किसान कमाद की फसल से गुड़ और शक्कर बनाकर मंडियों में ज्यादा दामों फरोख्त करते हैं। गन्ने से लेकर गुड़ शक्कर बनाने तक किसानों को बड़ी मेहनत करना पड़ती है। शहरी मुनफरद जायकादार गुड़ शक्कर का मजा लेकर अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा करते हैं। चीनी के मुज़र असरात सेहत पर मरतब होते हैं, जबकि गुड़ और शक्कर सेहत अफजा है। मौसम सरमा में गुड़ की मांग में इजाफा, मर्दान में गुड़ की तैयारी का सिलसिला शुरू हो गया। मंजूर हुसैन की रिपोर्ट। मौसम सरमा के आते ही गन्ने की फसल तैयार हो जाती है तो गुड़गानियाँ भी फाल हो जाती हैं। गुड़गानी को गुड़ बनाने के रिवायती कारखाने को कहा जाता है। गुड़ बनाने के लिए जमींदार गन्ने को गानी में लेकर आते हैं। गन्ने के रस को कंक्रीट से बनी नालियों से बड़ी कड़ाही तक पहुंचाया जाता है, जहां रस को गाढ़ा होने तक पकाया जाता है। गुड़ बनाने के लिए गन्ने के चलके और बाकियात को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। रस गाढ़ा होने के बाद इसको कड़ाही में ही ठंडा किया जाता है, जिसके बाद इसको हाथों की मदद से गुड़ की शक्ल में तैयार किया जाता है। गुड़ को बोरियों में बंद करके मुकामी व बैनुल-अक़वामी मंडियों में फिरोख्त के लिए भिजवाया जाता है। रवायती तौर पर गन्ने से गुड़ बनाने का अमल आज भी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जारी है। गुड़ चीनी का एक बेहतरीन नेमुल बदल है। गुड़ का इस्तेमाल इंसान को शुगर और दीगर मुज़ी अमराज से भी बचाता है। मंजूर हुसैन, सच टीवी, मर्दान। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।